یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت کسی صورت سے اس سے نہ چھوڑا جائے. ہاں اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، باہر کوئی عذر ہو تو، ورنہ اب رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با قرینہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ مکمل ہوئے. اب خلاصہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں انہیں عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے. کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافع میں یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی. عمران صاحبہ نے کراچی سے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف. اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے. قربانی کا بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا. اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے. تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے. تو یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے. اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا. تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا. تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے، وقوف عرفہ نہیں ہے، سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا. تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دن ہے نا وقت یہ ظرف ہے. تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی. تو اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے. کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کی پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا. تو 9 ذی الحجہ کو تو رکھنا ہے. یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا. اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک جو ہے کہ ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذی الحجہ مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے
10 मुहर्रम का रोजा और अय्याम 20 महीने के 3 रोजे कभी नहीं छोड़ते। और एक रिवायत में अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 रोजे जुल्हिज्जा के पहले मतलब पहले अशरे के पहले 9 दिन के रोजे और 10 मुहर्रम का रोजा और इसी तरह अय्याम 20 महीने के 3 दिन 13, 14 और 15 ये रोजे कभी नहीं छोड़ते। तो इस रिवायत में 9 रोजे के तस्करा है, पहले 9 रोजे, तो पता चला इस महीने में रोजे भी रखना चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया के ताल्लुक से आता है, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 काम नहीं छोड़ते, आशुरे का रोजा, अशरे जुल्हिज्जा के 9 रोजे मतलब पहले अशरे के 9 जो है दिन के जो है फास्टिंग रोजे और महीने के 3 रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फजर की 2 सुन्नतें, 4 अमल कभी नहीं छोड़ते। इसमें भी क्या आ गया, 9 रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। तो अशरे जुल्हिज्जा में रोजा भी रखिए, तकबीरात रोजा 9 रोजे रख सकते हैं, 9 ना भी हो पाए तो कम से कम 1 तो जरूर रखिए, अरफे के दिन का रोजा, ठीक है। ये इसमें नंबर है 622044 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यौम अरफा के रोजे से मुताल्लिक अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो साबिका और आइंदा के 1 साल के गुनाहों को मिटा देगा, यानी 2 साल के गुनाहों का कफारा है, एक गुजरे हुए और एक आने वाले। 2 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा यौम अरफा का रोजा। और ज़ाहिर है कि नेकियां गुनाहों का कफारा बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको स्पोर्टिव कुरान हकीम की वो मशहूर तरीन आयत है, सूरह हूद की आयत नंबर 114, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम रखो दिन के दोनों सिरों में और रात के औकात में भी। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इसमें है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि नेकियों से सिर्फ सगीरा छोटे गुनाह माफ होते हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि अक्सर गुनाह बड़े ही हैं, झूठ, चुगली, गाली, जिना, शराब नोशी, माँ बाप की नाफरमानी, कत्ल। ऑलमोस्ट आप मिशकात ही में पहली जिल्द में आपको गुनाह कबीरा के बयान में तकरीबन 20-22 के करीब कबीरा गुनाहों का बयान मिल जाएगा। मसला नंबर 18 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है, इस हवाले से आप देख सकते हैं। तो ये कबीरा गुनाह जो है ना जी, वो सिर्फ तौबा से, और ऐसी तौबा जिसके बाद आप इस्लाह कर लें, उससे माफ होते हैं। जुबानी कलामी आप जितनी मर्जी नेकियां कर लें, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी आप तस्बीहात कर लें, कबीरा गुनाह कभी माफ नहीं होंगे जब तक सच्ची तौबा करके आंदा अपने आप की इस्लाह न कर ली जाए। और इसकी सपोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 550 से 552 तक 3 तुरुक है। मिशकात में भी मौजूद है 564 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाती है, एक जुमे से दूसरा जुमा दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। अब ये नहीं कोई एक जुमा पढ़े फिर अगला पढ़ ले, बीच की सारी नमाजें माफ नहीं। नमाज छोड़ना खुद गुनाह कबीरा है, हत्ता के सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 246 के बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है। तो नमाज छोड़ने से बड़ा कौन सा कबीरा गुनाह हो सकता है? तो जिसने नमाज छोड़ दी उसने कबीरा गुनाह कर लिया। अब एक जुमे से दूसरा जुमा दरमियान के गुनाहों का कफारा नहीं बनेगा, ना एक रमजान से दूसरा रमजान। पॉइंट टू बी नोटेड। तो नेकियां सिर्फ छोटे गुनाहों के माफ होने का सबब बनती हैं, और वो नमाजों से भी माफ हो जाते हैं। बाकी फिक्र आखिरत के हवाले से मैं अपने 2 लेक्चर्स आपको रिकमेंड करूंगा। मसला नंबर 146 है, मौत से पहले तौबा की जरूरत और क़यामत के दिन का होलनाक मंजर। और दूसरा है मसला नंबर 196, ये 146 वो 196, काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, ये उस लेक्चर का उन्वान है। ये आप सुन लें इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है फिक्र आखिरत के हवाले से बेनिफिशियरी होंगे ये।
मेरे भाइयों, ये बताने का मकसद ये था कि यौम अरफा जो 2 साल के गुनाहों का कफारा बनता है उसका रोजा, तो इससे मुराद छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह नहीं इससे माफ होंगे। ठीक हो गया। अब रहा मसला 9 ज़िलहिज्जा या यौम अरफा, ये सऊदीया के मुताबिक रोजा रखा जाएगा या दूसरे मुल्कों के मुताबिक? इसको टेक्निकली समझे आप। मैंने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1988, मुस्लिम में 2632 और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस में 2042, ये भी मिशकात में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो यौम अरफा के रोजे में सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ, तो कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का रोजा खुद रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप तो हज कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूध का प्याला पेश किया गया, आपने वो एलानियन नोश फरमा लिया, जिससे सबको ये पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के दिन रोजा नहीं रखा हुआ था। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से ये ट्रुथ रिवील हुआ कि यौम अरफा का रोजा है ही उन लोगों के लिए है जो हज नहीं कर रहे, जो हम जैसे गरीब लोग दूर बैठे हुए हैं, ये है ही उनके लिए। उनसे तो आप फैसिलिटी ना छीने। हाजियों के ऊपर तो रोजा ही नहीं है, क्योंकि खिलाफे सुन्नत हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का रोजा हज के दौरान नहीं रखा। इल्मी पॉइंट नंबर 2, चूंकि ये गैर हाजियों के लिए है, और गैर हाजी से मुराद सिर्फ सऊदीया के रहने वाले लोग तो नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। दुनिया के 7 बड़े आज़मों में रहने वाले कमोबेश 1.5 अरब के करीब 1.5 बिलियन मुस्लिम्स के लिए ये फैसिलिटी है कि वो यौम अरफा का रोजा रखकर 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफारा बनवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उनसे ना छीनी जाए। जस्ट लाइक शब कदर, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शब कदर को रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, उसमें तो कभी किसी ने सवाल किया कि जी चूंकि कुरान पाक तो सऊदीया में नाजिल हुआ था, तो सऊदीया की ताक रातें देखनी चाहिए, ये किसी को गुमान मिल हुआ। सब लोग यही कहते हैं जी अपने अपने मुल्क में ताक रातें देखें, आपके लिए वो शब कदर बनेगी, उनके लिए वो बनेगी। तो यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा, अगरचे यौम अरफा का दिन तो स्पेसिफिकली मैदान अरफात के लिए है, लेकिन वो 9 ज़िलहिज्जा का दिन बाकी पूरी उम्मत के लिए तो उनके चांद के मुताबिक ही होगा। मून साइटिंग के ऊपर मेरा एक अलग से क्लिप भी आप वो देख लें, मैं आज उस तरफ नहीं जा रहा। मून साइटिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे तो वो क्लिप खुल जाएगा आपको, इंशाल्लाह इस हवाले से और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कहना कि जी चूंकि इसका नाम यौम अरफा है, तो अरफात में जब हाजी होंगे वो वाला दिन बनेगा, तो फिर इसके ऊपर मेरा इल्जामी जवाब, फकी वाला जवाब, एंटी वैनम ये है कि फिर शब कदर भी वहीं होनी चाहिए जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में तो कुरान को नहीं नाजिल हुआ, तो एक फैसिलिटी थी अल्लाह ताला ने दी। इल्मी पॉइंट नंबर 3, अगर कोई बंदा किताबो सुन्नत के दलाइल पे बात ना मान रहा हो, फिर इसको क्या देना चाहिए? फकी। नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबें।